Today, our Honorable Prime Minister will inaugurate and lay foundation stone on multiple development projects in the nation which worth 30,500 crore rupees at a public function at Maulana Azad Stadium, Jammu. This project includes several sectors like health, education, rail, road, aviation, petroleum, civic and infrastructures, etc. Here at our CUTN, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is about to unveil three additional infrastructures. This is a significant step towards upgrading the infrastructure of centrally funded higher education institutions nationwide. Today, our Prime Minister is inaugurating and dedicating several projects worth rupees 12,744 crores and 39 lakhs to the nation. A really big event with a wider vision for the nation's development, indeed a proud moment of history. Today, on February 20, 2024, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is virtually inaugurating and dedicating three state-of-art infrastructures at the Central University of Tamil Nadu. The newly constructed buildings that are to be unveiled include Kailash Satyarthi Academic Building, Godavari Girls Hostel 300-seater, Mahanadi Boys Hostel 300-seater. The inauguration marks a significant leap towards enhancing educational and residential amenities, symbolizing the Government of India's commitment to enhancing educational infrastructures across the nation. Constructed at rupees 95 crore and 20 lakhs, these three facilities were made possible through the financial support of the Higher Education Financing Agency. The Central Public Work Department initiated the construction work. The newly inaugurated buildings feature modern facilities such as lifts, Wi-Fi connectivity and advanced safety measures. The Kailash Satyarthi Academic Building was constructed at the cost of 31 crores and 95 lakhs with 7,092 square meters. It accommodates 6 departments, including the Department of Music, Department of Statistics and Applied Mathematics, Department of Horticulture, Department of Epidemiology and Public Health, Department of Microbiology and Department of Physical Education and Sports. The Godavari Girls Hostel, 300-seater and Mahanadi Boys Hostel, 300-seater were both constructed for 31 crores and 67 lakhs with 8,117 square meters respectively. Offering a conducive learning environment for students, these modern facilities contribute to the holistic development of students at the Central University of Tamil Nadu. Today, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji here with his nation to inaugurate and lay the foundation stone on multiple development projects in the nation worth rupees 30,500 crores at Maulana Azad Stadium, Jammu. Indeed, it's a great moment and pride and joy to be a part of this historical moment and to listen to our Modi ji's talk. जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिरों के शहर जम्मू में सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे मौलाना आजाद स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। Kindly welcome our Prime Minister with a round of applause.
जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ पहुंचा है। आप जिस पल का हमें हमारे अभी से इंतजार था, वो पल आ पहुंचा है। आप सबके सामने हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप पहुंचे हैं। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे शॉल, माता की स्मारिका, वापस भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि स्वागत संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, आज इस सभा स्थल पर मौजूद सभी डीडीसी के चेयरपर्सन, अनेक पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, भाइयों बहनों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, गुलशन ग्राउंड, साइंस कॉलेज, भगवती नगर तथा जम्मू कश्मीर के 280 ब्लॉकों, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, नए भारत और नए जम्मू कश्मीर के शिल्पकार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं मंदिरों के शहर जम्मू में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ। अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे बंद हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 30,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी।
जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल, माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूँ। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले। दलित हो, आदिवासी भाई हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो तथा हमारी बहनें महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया। इतिहास में पहली बार पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि एक संवैधानिक बाध्यता थी, इसके कारण पंचायतों के चुनाव नहीं हो सकते अर्बन लोकल बॉडी के। अब इस आरक्षण के बाद उस चुनाव को भी समय से कराया जाए, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। हमारी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। लंबे समय से पहाड़ी भाइयों की मांग थी, उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहले से जो गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिक्की भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम किया। पिछले 4-5 वर्षों में जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, चाहे गुर्जर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिक्की हो, सीना हो, इनको जो सुविधाएं देश के अन्य हिस्सों में मिलती थी, पिछले 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण भी उनके सामाजिक विकास को भी नई गति देने में हमें सफलता मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख से ज्यादा नागरिकों ने भागीदारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ लेकर के पहुंची। इस जन आंदोलन में जम्मू कश्मीर देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ। साथ ही चाहे आजादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर तिरंगा हो या मेरा माटी मेरा देश हो, जन अभियानों में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को मेरी माटी मेरा देश के लिए देश का प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की गति भी जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर में निवेश के मिले हैं। 14,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं और जो भी प्रस्ताव आए हैं इन्हें हकीकत में बदलने का काम हम जरूर शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं भी राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई और आज मैं कहना चाहता हूं पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर। अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार योजना के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सहायता मिली। 87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 8 लाख बहनें हमारी आज जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुनी बढ़ गई। जहाँ 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, वहाँ पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा परियोजनाएं हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ 2019 में
जहाँ 40 ई सर्विसेज थी, आज 1100 से ज्यादा ई सर्विसेज दे करके जम्मू कश्मीर देश का सबसे अधिक ई सर्विस देने वाला यूटी या राज्य बन गया। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 5013 करोड़ रुपए बजट के अलावा 5 वर्षों में खर्च करने की अनुमति प्रधानमंत्री जी ने दी, उसके कारण 13 लाख परिवारों का जीवन बदलने वाला है। संपूर्ण पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया। आतंक की घटनाओं में भी 75% से ज्यादा कमी आई। जो भी तंजीमें थी, उनके टॉप कमांडर उचित जगह पहुंचा दिए गए। रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया। हड़ताल का कैलेंडर जो हमारा पड़ोसी जारी करता था, अब वो कैलेंडर जारी नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा का, रोजगार का कैलेंडर जारी करता है। स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की घटना हो गई। बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुले रहते। कश्मीर घाटी में आम आदमी नाइट लाइफ का आनंद उठा रहा है। जिन जिलों में पहले शाम होते ही भय पसरा रहता था, वहाँ देर रात तक सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जम्मू एवं श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने में हमें सफलता मिली। जहां झेलम रिवर फ्रंट पर देर रात को भी नौजवान गिटार बजाते हुए दिखता है, आने वाले कुछ महीनों में सभी रिवर फ्रंट पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, सदियों पूर्व से भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है। यही शारदा क्षेत्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन गौरव को जम्मू कश्मीर के पुनः वापस दिलाया है। 2 एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, NIFT, IIMC जैसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन तथा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी स्किलिंग के सेंटर इनोवेशन और इन्वेंशन के बना करके जम्मू कश्मीर को आज एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर अब देश का ऐसा शहर बन गया है, अकेला शहर बन गया, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य पैरामीटर पर भी जम्मू कश्मीर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हर नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिला हुआ है। आध्यात्मिक नगरी जम्मू को अब देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। दशकों बाद जम्मू संभाग के क्षमता का दोहन शुरू हुआ। सभी 10 जिलों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर देश के अन्य औद्योगिक शहरों के समकक्ष खड़े होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, जो बहुत अल्प समय में नया सामर्थ्य अर्जित करके विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान देने को तत्पर है। वह व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, कला हो, संस्कृति हो तथा खेल का क्षेत्र हो, नित नई उपलब्धियां आज जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है तथा जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। ये आपके सपनों का जम्मू कश्मीर है, ये आपके संकल्पों का जम्मू कश्मीर है। मैं इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की तरफ से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उपराज्यपाल महोदय। निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वह अपने संबोधन के लिए पधारे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता, हम सबके हर दिल अजीज परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की इस पावन धरती पर शूरवीर शहीदों की इस बलिदान भूमि पर
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा की कर्म भूमि पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। उनके साथ हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, हमारे सांसद भाई युगल किशोर जी, गुलाम अली जी। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन से आपके यहाँ आने की सूचना पहुंची है उस दिन से ही यहाँ सब लोगों में एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत उत्साह का संचालन हुआ है। और वो इसलिए कि जिस संवेदनशीलता के साथ आपने जम्मू कश्मीर की चिंता की है, हम सब की चिंता की है, ऐसा कभी ना देखा और कभी ना हुआ। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था वो था माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन के लोकार्पण। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के थोड़े ही समय के बाद जब यह भीषण बाढ़ आई तो आपने अपनी पहली दीपावली कहीं और मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी, यह आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में एशिया की सबसे लंबी सुरंग चरैनी से नाचनी तक का रोड टनल निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आप ही के कार्यकाल में यहां से अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप का एक नया विकल्प दिया है। और आप ही के कार्यकाल में 40 बरस के बाद राष्ट्रीय परियोजना शाहपुर कंडी को पुनः आरंभ करके हिंदुस्तान के हिस्से का जो दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था उसे रोकने की व्यवस्था की गई। और आप ही के कार्यकाल में 2 एम्स, IIT, IIM। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद 70 साल से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका अधिकार मिले, वाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुजरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले। कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार मिले। कोई ऐसा वर्ग ना था वो वंचित रह गया। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम मंदिर के दर्शन करवा के जहां आपने ये सिद्ध कर दिया कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है, उसके आगे और कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपके ध्यान में एक चीज लानी है मुझे आज, और फख्र होता है ये कहते हुए कि हम जम्मू वासियों को, हम जम्मू कश्मीर वासियों को मोदी की इस गारंटी का विश्वास आज से 11 बरस पहले हो गया था। याद कीजिए, दिसंबर महीना 2013, यही स्थल, यही स्थान, इसी तरह की विशाल रैली, ललकार रैली को संबोधित किया था श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पदभार संभालने से पहले। और उनके शब्द मुझे भली भांति याद है। आपने कहा था, क्या यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई ग्रहण करने का अधिकार नहीं? क्या यहाँ IIM नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ IIT नहीं होना चाहिए? और आपने उस गारंटी को निभाते हुए आज आप भी के शुभ हाथों से यहाँ के युवाओं को IIT भी मिलने वाला है, IIM भी मिलने, के आगे कोई और गारंटी नहीं। और सबसे पहले ये गारंटी हमें उस समय मिली थी जब आपने पदभार संभालने से पहले इसी स्थान पर हमें संबोधित किया था। और इसलिए
जब आपकी इस संकल्प से सिद्धि के हम लाभार्थी हैं, तो हमें भी आपको यह आश्वासन देना है कि हम आपके नेतृत्व की विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर की यात्रा में हम सब और प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे सामर्थ्य के साथ समर्पित होने को तैयार है, ताकि सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर उस शताब्दी भारत के मुकुटमणि की तरह दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जम्मू कश्मीर निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर की तकरीबन 32,000 करोड़ की 220 परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला अपने कर कमलों से रखेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के साक्षरता मंत्रालय की 13,375 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला रखेंगे, जिनमें हमारे IIT व IIM भी शामिल हैं व PM ऊषा के 78 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देंगे। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन परियोजनाओं का रिमोट द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री। Ladies and gentlemen, on this auspicious occasion, when our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is dedicating to different buildings at national level, we are happy to have one among them, a CUTN building worth 95 crores and 20 lakhs. We have our Honorable Vice Chancellor, Professor M. Krishnan Sir, our visionary and most admirable leader of CUTN, to unveil the plaque here. जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू के आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए और 75 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें लगभग 890 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत के कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज के लिए 3100 फ्लैट और 280 करोड़ रुपए की 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परियोजनाएं हैं। चहुमुखी और सर्वस्पर्शी विकास की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये नया विस्तृत टर्मिनल जम्मू कश्मीर में हवाई यातायात में बढ़ोतरी को संभालने में सक्षम होगा, जिससे पर्यटन, आर्थिक विकास एवं यात्रीगण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उचित स्थान मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कॉमन यूजर पेट्रोलियम टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया है। ये संपूर्ण प्रदेश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण गोदाम के रूप में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के विकास की ये यात्रा निरंतर जारी है। कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल यात्रा जो कभी एक सपना था, अब वो साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में वादी कश्मीर में
श्रीनगर स्टेशन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन से बारामूला के बीच चलने वाली ट्रेन को अब माननीय प्रधानमंत्री जी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देश भर में पिछले कुछ समय के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार हासिल हुआ है। इसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर के 1748 युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो कि डिजिटली मोबाइल मैसेज द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं में से 2 युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे, जिनके नाम है साइमा बशीर बड़गाम से, जिनका चयन पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। सौरभ शर्मा सांबा जिला से, इनका चयन जेई मैकेनिकल PWD R&D में हुआ। सौरभ शर्मा। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। विकसित भारत, विकसित जम्मू, अमन और तरक्की की नई तस्वीर। जैसे आप सबको ज्ञात है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2023 को की थी। इस यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में 4405 जगहों पर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 42 लाख लोगों ने शिरकत की। जगह जगह भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और उनका पंजीकरण करवाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत लाभ मिला। अब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए हमारे साथ सभी 285 ब्लॉक व 78 अर्बन लोकल बॉडीज से करीब 85,000 लोग जुड़ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले, जम्मू कश्मीर तथा देश के लगभग सभी IIT, IIM, एम्स व अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इस समय हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। सबसे पहले हमारे साथ हैं वीना देवी जी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। वीना जी किश्तवाड़ जिले से हैं। आज इस पंडाल में हमारे साथ मौजूद हैं वीना जी। हाँ, देख दिया। वीना जी नमस्ते। वीना जी जरा अपने विषय में बताइए कि योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। और माननीय सर्वप्रथम आपको मेरा मेरी ओर से स्वागत की अभिवंदना और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कर्तव्यों द्वारा सफल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मान्यवर, मेरा नाम वीना देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूर दराज क्षेत्र देवभूमि पार्क से बिलोंग करती हूँ। अजबरी मेरे गांव का नाम है। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ। पर गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था। जैसे गांव में जंगल से लकड़ी काट कर लाना,
चाहती थी माननीय महोदय, इस संबंध में ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अर्थव्यवस्था के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। मान्यवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उनका जो मुझे कनेक्शन मिला है, उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विभिन्न घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। तो पहला लकड़ी बाजार से बिकती थी या आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था? खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। तो अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया, जी महोदय, चूल्हा जलाने का समय बच गया, तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है? सर, आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत बचत हो जाती है और हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या थी वो भी दूर हो गई है। और क्या लाभ मिला है आपको? मान्यवर, मेरे परिवार में आयुष्मान कार्ड प्रत्येक सदस्य का बना हुआ है। राम कृपा से आदिवासी लोग तो नहीं आएंगे, किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार जरूर दिया है, जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उस उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी न आ जाए। धन्यवाद मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीना जी। अब हम चलते हैं कठुआ जिले की कीर्ति शर्मा जी के पास। कीर्ति जी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत लाभ मिला है। आज कीर्ति जी जम्मू में हमारे साथ यहाँ पंडाल में मौजूद है और हमारे साथ जुड़ रही है। कीर्ति जी नमस्कार। धन्यवाद जी। चालू किया, जिससे मेरे महीने की आय जो हो गई। मैंने सोचा कि एक गाय से रोजगार चल रहा है, तो मैं अपनी समूह की महिलाओं को साथ में लेकर गाय, इसके लिए मैंने समूह से 7 रुपये का लोन लिया। वहाँ से मेरे साथ साथ मेरी समूह की महिलाओं का भी आत्मनिर्भर बना और उनके परिवार को अच्छे से चलने का रास्ता मिला। मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। एक नारी शक्ति बनाने में मुझे ये समूह का बड़ा सहायता मिला है। मैं संकल्प है कि जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, वैसे ही मेरी समूह की सभी महिलाएं, जिले की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। आपके समूह में कितनी बहनें हैं? 8 बहनें हैं।
और सब पशुपालन के काम में लग रही है कि और भी काम कर रही है? पशुपालन के काम में भी लगी हैं और कोई बहनें उसमें सिलाई भी करती हैं। तो आपके बैंक से कोई लोन वोन लिया है आपने? प्रमुख से बैंक से हमें लोन मिला है, जिससे हमारा रोजगार बड़ा अच्छे चल रहा है। कितना लोन मिला बैंक से? पहले हमने 3 गाय लेने के लिए 7 रुपए दिया था। अभी बैंक को पैसा वापिस दे दिया या देना चालू है? वो वाला हमने खत्म कर दिया है। आज 10 गाय हैं हमारे समूह की महिलाओं के पास। वाह, आपने तो बड़ी क्रांति कर दी है। हाँ जी सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। आपको सरकार की और कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ जी सर, मुझे हमें समूह से जुड़ने से पहले योजनाओं का पता नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद हर एक योजनाओं का पता चला और उसका हमने लाभ लिया है। जैसे आवास योजना, जल जीवन योजना, आयुष्मान कार्ड, लाडली बेटी, हर एक उज्ज्वला योजना, हर एक का हमने लाभ लिया है। वाह, आप तो बढ़िया तरीके से बताती है। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे बताइए, सर, मेरा एक बड़ा सपना है। हाँ जी सर। वो सपना ऐसा है कि मैं देश में आप जैसी बहनें जो है, जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, उसमें से 3 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ। 3 करोड़ लखपति दीदी। आप मुझे बताइए, आपके समूह में मुझे कितनी बहनें लखपति दीदी बना सकता हूँ? सर, मेरे 5,850 महिलाएं हैं, जिनको मैं खुद कोशिश करके लखपति दीदी बनाने में आपका स्वयं 8,000। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बधाई हो। अपने नरेंद्र मोदी जी का, पूज्य राजपाल जी का, जेके आनंद का और जो बड़े-बड़े सहयोगी हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया टीसी जी आपका। अब हम चल रहे हैं पुंछ, जहां से लाल मोहम्मद जी समाप्त करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाया है। लाल मोहम्मद जी पुंछ से। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ में पूरे पुंछ के वहाँ की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी, जरा अपने बारे में बताइए। सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उनका फायदा पहुंचा, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है, मैं जानना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से हम एक, मेरा नाम लाल मोहम्मद है, दुजल बरादरी से तलक रखता हूँ और हम घर में 6 फरीक हैं और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे और परेशानी आगे कच्चे मकानों में रहते थे। और मैं गांव दड़ा मोरा बॉर्डर पुंछ का रहने वाला हूं, जहां हमने मिलिटेंटी के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है। और मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री PM के तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके लिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर और बना है। हाँ, पक्का घर बना है और बढ़िया बना है, जगह चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। और तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ, बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक है। ऐसे तो हमारे गांव में दोस्त भी सब बहुत आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे आम बहुत खुशी में आते हैं। और फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। नहीं, बहुत अच्छे हैं, खुशी से रहते हैं और आपका गुण गाते हैं सभी बच्चे गांव वाले। मोदी जी
नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे उनमें। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही है, आपको इसका लाभ मिल रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल मोहम्मद जी। हाँ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। और मैं एक अपनी कौम की तरफ से विकसित भारत का एक शेर सुनाना चाहता हूँ 2 सेकंड। हाँ, सुनाइए। हम गुजरिया धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम गुजरिया धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हमना अपना जहाँ सुचारी मुल्क अपना की शान, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली रे बम भर तो, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली रे बम भर तो, वफादारी है खून मारा मारियो जाने जग सारो, विकसित भारत माँ है आगे मारा शेर जवान, हमना अपनी जान तो प्यारी मुल्क अपना की शान। शुक्रिया हम सब गांव वाले और मेरे पूरी कौंस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद लाल जी, आपने बस क्षमा बात दिया, पूरा देश आज आपको छुड़ रहा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आशीर्वाद आपको देते हैं। सब लोग आपको हाँ, बधाई दे धन्यवाद। रहे हैं। परेशानियों में जो लोग हैं वो भी खुशहाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाल मोहम्मद जी। इसके बाद अब हम चलते हैं बांडीपुरा, जहाँ से शाहीना बेगम जी प्रधानमंत्री संवाद करेंगी। इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ लिया है। शाहीना बेगम बांडीपुरा से। साहिरा जी, नमस्ते। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए। साहिरा जी, जरा सुनना चाहता हूँ आपके यहाँ क्या क्या योजनाएं पहुँची है, जरा विस्तार से अपने बारे में भी बताइए। जी सर, मेरा नाम शाहीना, मैं SHG मेंबर ऑफ NRL उम्मीद, पंचायत सुनरवानी, ब्लॉक बनापुर, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से ताल्लुक रखती हूँ। सर, मैंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरी फैमिली में 7 मेंबर शामिल हैं। सर, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आई, लेकिन 2018 में जब हमारे ब्लॉक में सोशल मोबिलाइजेशन हुई, मैंने भी NRL के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया। सर, मैंने वहाँ से लोन लेके अपनी बिजनेस की शुरुआत एक स्मॉल हनी फार्मिंग से की। सर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फायदा मिला। फिर मैंने NRL से CIF लोन, लियो लोन, बैंक लीकेज लेके अपना मल्टीपर्पज यूनिट स्टैब्लिश करने का काम अमल में लाया, जिसमें राइस मिल, फ्लोर मिल, मसाला मिल, ऑयल एक्सपिलर, पोल्ट्री यूनिट और हनी फार्मिंग है, जिसकी जरूरत हमारी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा थी। सर, आज मेरा रोजगार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा, इसके साथ साथ मेरे साथ वहाँ 5 SHG मेंबर्स और भी काम करते हैं, जिनका गुजारा, जिनका रोजगार हमारे यूनिट से निकलता है। सर, NRL ने मुझे न सिर्फ लोन बल्कि इसके साथ साथ मेरी बिजनेस की मार्केटिंग भी की, जिससे मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल गई और मैं आज के देश की एक लखपति दीदी बन गई। सर, आप लखपति दीदी बन गई, मेरी तरफ से बहुत बधाई। लेकिन साहिरा जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मैं लखपति दीदी की बात करता हूँ ना, तो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दुनिया भर की गंध उठाते रहते हैं, उनके गले उतरता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार से गांव में लखपति दीदी बन सकता है क्या। साहिरा जी, आपने एक करके दिखाया है, देश वालों को
समय आएगा तो हो सकता है। सर एनआरएलएम के जरिए मेरी मुलाकात अनिमल हस्बेंड्री से होगी, जिन्होंने मेरी पोल्ट्री सक्सेस को देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में मुझे केसीसी का लाभ दिलाया, जिससे मेरी पोल्ट्री को एक बहुत बड़ा पुश मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। सर मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहूंगी कि अब हम अपना ब्रांड, अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ लिबर्टी कश्मीर से बाहर भी ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर घर तक अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ लिबर्टी ले जाना चाहते हैं, जिससे सारे एसएचजी मेंबर्स को, बहुत सारे एसएचजी मेंबर्स को रोजगार भी मिलेगा और मैं अपनी मेहनत से अपने देश की खिदमत करने में कामयाब भी हो जाऊंगी। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाब है सर। सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया और आप गांव में जाकर के शादी कर करके इतनी पढ़ाई के बाद भी गांव में जाके रही, कभी निराश नहीं हुई और आपने उद्यमी बनने का सपना देखा। और आज मैं देख रहा हूं कि आपने इस बातचीत का फायदा इतना उठा लिया है, कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट का पूरे देश में प्रचार भी कर दिया। तो आप बिल्कुल पक्के व्यापारी हो। सर ये आपके माध्यम से और एनआरएलएम के माध्यम से मैं उस मुकाम तक पहुंच गई जहां पे पहुंचना मेरे जैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर फीमेल रूरल एरिया, एक रूरल एरिया में रहने वाली औरत, एक बच्चों की खातिर जिम्मेदारियां, घर की खातिर जिम्मेदारियां, ऐसे में अपनी कामयाबी हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने हमारे विलेजों में ऐसी स्कीमें दिलाई जिन्होंने हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना दिया, एक नया बदलाव। बधाई हो साइना जी, आपने बहुत ही देश की बहनों को दिशा देने वाली हिम्मत दिखाई है, काम किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीना जी। अब हम चलते हैं जिला पुलवामा, जहाँ के रियाज अहमद कोहली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत इन्हें अपने घर में नल से जल की सुविधा प्राप्त हुई है। पुलवामा से रियाज अहमद। रियाज जी नमस्ते। नमस्कार सर। रियाज अहमद बताइए, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रियाज अहमद कोहली है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूर दराज इलाका अंदरवाली में रह रहा हूँ सर हमें पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारी औरतें और बच्चे एक नदी से पानी लाते थे सर, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था सर। जैसे ही सर JGM स्कीम आई तो उसका हमें लाभ मिला, तो आज हमारे हर घर में पानी चल रहा है सर, हर घर में नल है सर। तो हमारे उसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब टाइम से स्कूल पे पहुँचते हैं और हम साफ पानी पीते हैं, हमारी सेहत भी ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई सर, तो हमें एक किट सेट मिला सर। हम 5-10 दिन के बाद वहाँ पे पानी की टेस्ट करते हैं सर और हमें साफ सुथरा पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने गाँव की तरफ से और अपनी तरफ से जनाब का तहदील से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गाँव के सभी घरों को कनेक्शन हो चुका है, काम पूरा जी बिल्कुल हो चुका है। तो सब माताएं बहनों के मेरे बहुत आशीर्वाद मिलते होंगे, क्योंकि माताओं बहनों के लिए पानी एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है और सबसे ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ती है। तो मैं तो हर माँ को मदद करने के लिए ये पानी पहुँचा रहा हूँ। तो सब माताएं बहनों को पता है, आशीर्वाद मिलेंगे मुझे। वो सर आपको दुआएं दे रहे हैं सब लोग, जिनको अभी तक पानी नहीं मिला, तो आज पानी ही जिंदगी है इंसान की सर। अच्छा, आपके यहाँ और कौन कौन सी योजनाएं आई हैं जिसका पता है? सर मैं गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ और हम जंगल के बीच में रह रहे हैं सर। तो सर जैसे ये 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद हमारे
जम्मू कश्मीर में सर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ सर, तो हमने उसका लाभ उठाया, तो हमें आज मालिकाना हकूक मिल रहे हैं सर। हम खुशी से अपनी ज़मीन पे रह रहे हैं। आज हम समझ रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं। तो इसके लिए तमाम ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से आपका और एलजी इंतजामिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं सर। देखिए, आपको शायद पता होगा नहीं, क्योंकि आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे। मैं करीब पिछले 40-50 साल से जम्मू कश्मीर से मेरा नाता रहा, और पहले जब यहाँ संगठन के काम में आता था तो ज्यादातर गुर्जर परिवार के लोग ही मुझे संभालते थे। मेरी सारी खातिरदारी गुर्जर परिवार करते थे। तो मैं आप लोगों से बहुत निकट जुड़ा रहा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ इतना दूर दूर जंगलों में भी पानी पहुंचा है। पर ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। आज तक तो मेरी औकात सर एक MLA तक बात करने की नहीं थी। इसकी तो बहुत खुशी है, क्योंकि एक गाँव से निकल के आके मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपका ये बड़ा पान है सर, मौका दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। और भी सर हमारे गाँव में बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका गुर्जर लोगों ने, खासकर बैकवर्ड लोग हैं जो सर जिन्होंने फायदा उठाया। जैसे उज्ज्वला स्कीम है सर, मैंने खुद कनेक्शन लिया है सर, और गांव के जितने भी लोग हैं सर ने कनेक्शन लिया है सर, और उसकी सब्सिडी भी हमारे अकाउंट में आ रही है सर। तो हमारा टाइम भी बच गया सर, और हमारा पैसा भी बहुत कम खर्च हुआ सर। और उस सबसे बड़ा जो आपने सर काम किया, जिसको देश के लाखों और करोड़ों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर, कि हम जैसे गरीब लोगों के पास सर इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे सर। जो गोल्डन कार्ड की सहूलियत हमें मिली सर, तो आज हमारे सारे लोग खुशी से जाके सिर्फ गोल्डन कार्ड दिखा के तो अपना इलाज करवाते हैं। ये सर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके लिए पूरे देश के लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर। बड़ी खुशी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी, और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों से भाव, जय हिंद। एक बाणी परतिए इस दुर्गर भूमि पर आई, मिंगी बड़ा जय लगा कर दे। डोगरे बड़े मिलनसार जिनने मिलनसार ने इतनी गाय मिट्टी, इतनी भाषा है, तांगे ते दुर्गति कवित्री पद्मा सतदेव ने अखेदाए मिट्टी डोगरे आदि बोली मिट्टी डोगरे दिया बोली से खंड मीठे लोग डोगरे। साथियों, मैंने जैसा कहा मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा। बहुत कार्यक्रम मैंने किए, बहुत बार आया हूँ। रवि जितेंद्र सिंह ने बताया इस मैदान में भी किया, लेकिन आज का एक जन सैलाब, आज का आपका जुनून, आपका
का ये उपहार और मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है और आप में से एक मिलता ही नहीं है। और मुझे तो बताया गया ऐसे 3 स्थान यहाँ पर है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा कर लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही बड़े इतना बड़ा कार्यक्रम और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर कसौटी हर कई जगह चुनौती रहती है। कसौटी हर बार हमारी कसौटी करती है, वहाँ भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना वाकई के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यह भाषण करना चाहिए कि नहीं करना, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे। की गारंटी वाली गाड़ी गांव तक पहुंच रही थी, तो आप लोगों ने इसका शानदार स्वागत। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहले इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया। वेट பண்ணுங்க Sir. Happened that day. When we were sitting in the meeting, people are asking advance in this hand and they do even in this hand. Within before 4 o'clock, he even called the SBA manager to credit the amount in the respective people, and that is how this day became possible for all of us. So thanks to Giridhar sir for his wonderful support. I also extend my sincere, heartfelt thanks to Professor S. Nagarajan, who was the project monitoring committee, who had been here as a pillar for all these activities. 3 buildings, he must have visited 100 times and has taken every nook and corner of the building, taken all the effort. So the entire team, even including our engineers, sincere thanks to you, sir. And my special thanks to our librarians, sir, and other statutory officers, the deans of various schools, heads of the departments, and the entire faculty who are the support for all of us. Those are in the admin to run the duties. So thank you so much for all your effort. A special mention to Department of Horticulture and Department of Media and the students who spend the entire day for decorating this hall and arranging this, making all these arrangements. Thank you so much to the departments as well as the students. I also thank the entire team who has behind this D-Day, that is right from technical committee, food committee, decoration committee, invitation committee, transport committee didn't do much, but still they have done flag arrangements, and entire committees. If I missed something, I'm sorry, but everybody worked for this D-Day. So thank you so much to every one of you for making this a memorable day to CUTNs. I'm sure, like Viksit Bharat, there is a Viksit CUTN. We all achieve even greater heights in future with the honorable member SAR's leadership. And I also thank each and every one of you. If I missed anyone, I'm from my unknowingly, I'm thankful to PRO, sir. That is invitation team. I have taken the team, sir. So all of you, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद.
Nandri, ಧನ್ಯವಾದಗಳು and thank you. Thank you so much for the warm words, ma'am. Now I request the gathering to raise for national anthem. जनगणमन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ